ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی ایک بار پھر سماعت کی۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ اگر جنرل مشرف دوبارہ خصوصی عدالت سے غیر حاضر ہوتے ہیں تو خصوصی عدالت ان کی عدم حاضری میں کارروائی کو آگے بڑھائے گی اور اس کیس کا فیصلہ سنائے گی۔ مگر آج جہاں خصوصی عدالت کی طرف سے سپریم کورٹ کے احکامات کی کچھ اس طرح تشریح کی گئی کہ خصوصی عدالت نے آج جنرل مشرف کے وکیل کو سنا بھی، ان کی درخواست پر دلائل بھی سنے، استغاثہ کو بھی کہا کہ آپ بھی جواب دیں، اور پھر ان کی التوا کی درخواست منظور بھی کی، اور اب 12 جون کی تاریخ رکھی ہے۔ جنرل مشرف کو مزید مہلت بھی دے دی ہے، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یک طرفہ کارروائی ہوگی اور جنرل مشرف کے وکیل کو نہیں سنا جائے گا، اور جو سوالات خصوصی عدالت نے جنرل مشرف کو بھجوائے تھے ان کے جواب حاصل کرنے کے لیے ان سوالات کا جواب بھی جو ہے دائر نہیں کیا گیا۔ اور ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ خصوصی عدالت کی تینوں معزز ججز صاحبان نے جنرل مشرف کی بریت کی درخواست جو 1 مہینہ پہلے دائر کی گئی تھی کہ جنرل مشرف کو بری کر دیا جائے، اس درخواست کو بھی باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے نوٹسز جاری کر دی ہیں وفاق کو اور استغاثہ کو بھی۔ اب 12 جون کو ان دونوں درخواستوں پہ مزید جو ہے وہ بات ہوگی، بلکہ التوا کی درخواست تو منظور ہو چکی ہے، اور آج جنرل مشرف کے جو حمایتی تھے، جو ان کے پارٹی کے ورکر تھے، آج بڑے عرصے بعد یہاں پہ پھول اور پتیاں لے کر آئے ہوئے تھے۔ شاید ان کو پہلے سے کچھ اندازہ تھا کہ آج جنرل مشرف کے حق میں کچھ بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ استغاثہ جو ہے وہ خصوصی عدالت کے اس حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ اور بظاہر یہ سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے جو کچھ آج خصوصی عدالت میں ہوا ہے۔ ہم نے خصوصی عدالت کی کارروائی کے فوراً بعد استغاثہ کی ٹیم کے سربراہ ایڈوکیٹ نیئر سے مختلف سوالات کیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے ان سوالوں کے کیا جواب تھے، اور اس کے بعد پھر جنرل مشرف کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر سے بھی ایم جے ٹی وی مطیع اللہ جان نے بات کی۔ نیئر صاحب، آپ استغاثہ کے وکیل ہیں، کیا آپ خصوصی عدالت کے اس حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے سر؟ خصوصی عدالت نے سپریم کورٹ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں سر؟ سر، جنرل مشرف کے خلاف ان کی عدم حاضری میں کارروائی کرنے کے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود خصوصی عدالت نے آج جنرل مشرف کے التوا کی درخواست منظور کر لی، ان کے وکیل کو بھی سنا اور ان کی بریت کی درخواست پہ بھی نوٹسز جاری کر دیے۔ کیا یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے؟ نہیں صاحب، آپ استغاثہ کی ٹیم کے سربراہ ہیں، آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ کیا خصوصی عدالت نے سپریم کورٹ کے حکم کی توہین کی ہے، توہین عدالت کی ہے خصوصی عدالت نے؟ نہیں صاحب، ان سوالوں کے جواب دیں نا سر۔ کیا یہ سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے آج جو خصوصی عدالت نے کی ہے؟ السلام علیکم سر جی، تہاڈا بھی حق پورا کرنا نواز صاحب سر، آپ کے دلائل نے تو انقلاب برپا کر دیا آج خصوصی عدالت میں، تو سپریم کورٹ کے حکم کا کیا بنے گا جس میں کہا گیا تھا کہ مشرف اگر نہیں آئے تو ان کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی جائے؟ کیا آج کے حکم میں ہوا کیا ہے، پہلے یہ بتا دیں۔ دیکھیں، آج کے آرڈر میں سب سے پہلے تو میڈیکل کنڈیشن کو ریکگنائز کیا گیا ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ انٹرم آرڈر سے ریفلیکٹ ہو رہا تھا کہ جب وہ پاکستان تھے تبھی ان کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ تبھی ہاسپٹلز میں ایڈمٹ تھے، تبھی منسٹری آف انٹیریئر نے ان کو کمپیشنیٹ گراؤنڈز اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ آرڈر میں کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ آج کے آرڈر میں خصوصی عدالت نے جو آج کی جو ہماری ایپلیکیشن فار ایڈجرنمنٹ میڈیکل ایلمنٹس کے اوپر التوا میں مل گئی ہے، اور وہ 12 جون تک کیس التوا ہے، ان کو ایک اور اپرچونٹی پرووائڈ کی گئی ہے کہ ان کی طبیعت بہتر ہوتی ہے۔ لیکن سپریم کورٹ نے تو کہا تھا التوا نہیں ملے گا، نہیں ملے گی، مگر آج سیکشن 9 کو پڑھا گیا کہ التوا تب ملے گی اگر ان دی انٹرسٹ آف جسٹس ایڈجرنمنٹ ہو سکتی ہے۔ سو آنریبل جج نے بھی کہا کہ کہیں یہ نہیں لکھا کہ ہم ان دی انٹرسٹ آف جسٹس میڈیکل، سو آج کا جو میڈیکل ایویڈنس تھا وہ ججز کو بہت اپیل کیا اور بڑا کنونسنگ ہے، لیکن آپ کو سنا بھی گیا، سپریم کورٹ نے کہا تھا آپ کو سنا بھی نہیں جا سکتا۔ جی، انہوں نے اسی سیکشن 9 پر ریلائی کیا، جس سیکشن 9 پر ریلائی کرتے ہوئے پروسیڈ کرنے کا کہا، اس سیکشن 9 میں
जजेस ने ये पॉइंट आउट किया कि डिफेंस काउंसिल अपॉइंट होगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि सेक्शन 9 में नहीं अपॉइंट होगा। सो सेक्शन 9 ऑफ द हाई ट्रीजन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में डिफेंस काउंसिल क्या अपॉइंट होता आपको है। अब खसूसी अदालत की तरफ से अपॉइंट किया गया है या आप अभी भी मुशर्रफ मैं साहब के अभी वकील भी हैं? जनरल परवेज मुशर्रफ का वकील हूं और मेरी एप्लीकेशन फॉर एडजर्नमेंट हैज बीन एक्सेप्टेड। साथ ही साथ में आपने देखा कि 265 के की एप्लीकेशन पे मगर नोटिस क्या हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं की खसूसी अदालत ने? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कैसे? नहीं। ये खिलाफ वर्जी तो तब है, ये तो एक अपॉर्चुनिटी है और एडजर्नमेंट्स होती हैं। सेक्शन 9 में लिखा हुआ है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं पता था जब उन्होंने हुक्म दिया? नहीं, मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की ये किसी भी तरह ऑर्डर की वायलेशन है, हरगिज़ नहीं। ये ऑर्डर जो है उन्होंने ऑन जेन्युइन ग्राउंड्स फॉर सर्कमस्टांसिस बियॉन्ड हिज कंट्रोल, लाइक आई सेड मेडिकल एविडेंस बहुत कन्विंसिंग है, फोटोग्राफिक एविडेंस, फोटोग्राफ्स जब आ जाएं तो मेरा ख्याल है बात खत्म हो जाती है मती साहब। अच्छा, दूसरा ये बताएं, जो सवालात दिए गए थे जनरल मुशर्रफ को जवाब देने के, आज खसूसी अदालत ने अपने ही भेजे गए उन सवालात के बारे में भी कोई बात नहीं की, आपसे पूछा नहीं, क्या आपने जवाब जमा कराए? आज सबसे पहला उनका सवाल ये था कि आपको 342 के क्वेश्चंस मिल गए हैं, तो मैंने कहा जी वो मुझे रिसीव हो गए हैं। आपको भी जान के खुशी होगी कि मुझे वो मिल गए हैं। नहीं, लेकिन उनके जवाब कब आएंगे? दे दिया आपने? उनके जवाब मैं नहीं दूंगा सर, उनके जवाब जनरल परवेज मुशर्रफ खुद देंगे और अदालत में आके देंगे। वो वकील का काम नहीं है जवाब देना। अच्छा, क्या ये भी एक इत्तेफाक था कि खसूसी अदालत के तीनों मुअज़्ज़ज़ जजों ने आपकी तरफ से, जनरल मुशर्रफ की तरफ से दायर की गई बरियत की दरख्वास्त पे भी नोटिस जारी कर दिए हैं? वो होना ही था क्योंकि अभी कोई इसमें फैसला तो नहीं आया। ये एप्लीकेशन तो 2 महीने से पेंडिंग थी और ये मेरा हक था, मेरा राइट था। और वो 10 पॉइंट्स तो मैं उठा नहीं रहा, सिर्फ 1 पॉइंट मैंने उठाया है। उस 1 पॉइंट में उनको वजन लगाया, उन्होंने नोटिस क्या किया। जनरल मुशर्रफ इतने ताकतवर हैं कि वो यहाँ आते भी नहीं है, अदालतों के सामने नहीं, पेश भी नहीं होते नहीं, हैं? ये बात और दुरुस्त। उनकी अदम हाजिरी में उनको रिलीफ दी जा रही ये है, बात उनको दुरुस्त एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया था पाकिस्तान में, और ये इसके बात- बावजूद उनको सुना जा रहा है। साहब आपको एक चीज, क्या ये हकीकत नहीं है? मती साहब आप एक चीज को कंसिडर करें, वो आपकी तरह जवान नहीं है माशाल्लाह, यू आर वेरी यंग, ही 76 में आपको मालूम है कि बुजुर्गों को क्या एलिमेंट्स और क्या दुश्वारियां होती क्या हैं। बुजुर्गों के लिए अलग कानून है नहीं, पाकिस्तान कानून नहीं का? है, मगर जो बीमार है वो बीमार है। आइन से संगीन गद्दारी का मुलजम जो है उसके और- लिए खसूसी रियायत है। 2 चीजें हमने दे दी आज कोर्ट को, मेडिकल एविडेंस दे दिया, मेडिकल एविडेंस के साथ फोटोग्राफ्स दे दी, इससे बढ़ के और कोई एविडेंस हो नहीं सकता। Thank लेकिन you very जनरल much। मुशर्रफ के लिए इतनी रायतें क्यों दी कोई जा रियायत रही हैं? नहीं, कोई रियायत नहीं है, ये कोई रियायत नहीं है। बाय द बुक चल रहे हैं, एप्लीकेशन है, एडमिट हुई है, हो सकता है आइंदा एप्लीकेशन पर इत्तेफाक ना करें। सो इफ ही his health improves he will come back like he came and faced all the इस्तगासा charges। के जो वकील थे, इस्तगासा के, उन्होंने बार बार खसूसी अदालत से कहा कि आप जनरल मुशर्रफ के वकील को नहीं सुन सकते क्योंकि जनरल मुशर्रफ नहीं आए, और सुप्रीम कोर्ट का खसूसी हुक्म था कि जनरल मुशर्रफ नहीं आते तो उनको वकील को नहीं सुनना और उनके खिलाफ जो है केस को आगे बढ़ा के फैसला देना है उनकी अदम मौजूदगी में। सिर्फ 9 लाइनें सेक्शन 9 की, वो 9 लाइनें आप भी पढ़ लीजिएगा, अपने इस प्रोग्राम में भी उसको चलाइएगा। और मैं समझता हूँ प्रोसिक्यूशन ने वो 9 लाइनें पढ़ी नहीं है कि उस 9 लाइनों में क्या अच्छा, लिखा। आपके ख्याल आज में वो 9 लाइनें पढ़ी गई और उस 9 लाइनों की रोशनी में ही मुझे रिलीफ जो मिली। जस्टिस नजर अकबर साहब ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट गाइड नहीं कर सकती, हम एक इंडिपेंडेंट अदालत हैं, आप इससे एग्री करते हैं? उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि हमें प्रोसीड करने दें ऑन द बेसिस ऑफ दिस एप्लीकेशन। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस एप्लीकेशन के ऊपर कोई हुक्म दिया है? तो प्रोसिक्यूशन ने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा फिर आप इसको बताएं कैसे अपोज करते हैं, जो कि सरकार, उन्होंने कहा हम इस मेडिकल को तो नहीं चैलेंज तो आप क्या कहते हैं, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था उसके मुताबिक किया खसूसी अदालत ने? जी ऑफ कोर्स सेक्शन 9 के मुताबिक किया है, जिस तरह प्रोसीडिंग्स चलती हैं। सुप्रीम कोर्ट देखें, अभी आप देखेंगे कि कल हेयरिंग होगी, आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हेयरिंग है, कल मियाँ नवाज शरीफ साहब की हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में। सो मेडिकल और मुशर्रफ साहब की एज देखी जाए तो इन सबसे ज्यादा है 76। लेकिन कानून में संगीन गद्दारी के मुलजम के उम्र की वजह से तो उसको नहीं, बीमारी सबको हो सकती है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने क्रोमवेल को कब्र से निकाल के एहतसाब की बात की थी। आप मेरा ट्रायल ना करें, मेरा इंटरव्यू करें। अच्छा, क्विकली ये बता दें, आज जो आज आप फूल पत्तियों वाले लेकर आए हैं, बड़ी तैयारियां करके आए, आपको पता था आपको रिलीफ मिलने जा रही है? मुझे नहीं मालूम। मुशर्रफ को लाना है। सैयद जनरल परवेज मुशर्रफ जिंदाबाद। सैयद जनरल परवेज मुशर्रफ जिंदाबाद। सैयद जनरल परवेज मुशर्रफ। जी, आप अपना नाम बताएं और पार्टी बताएं। मेरा नाम है जी मोहम्मद खलील और मैं जनरल मुशर्रफ साहब की पार्टी का कारकुन हूँ और मैं समनाबाद टाउन का जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ। अच्छा, पार्टी का नाम क्या है? आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग।
अच्छा, और पार्टी के सरबराह अभी कौन है? अभी इस वक्त हिचकी साहब हैं, हैं? चेयरमैन तो हिचकी साहब हैं, लेकिन किसकी कौन? हिचकी दयातुल्ला साहब। आप उन्हें जानते हैं? जी जी, उनका नाम अभी नए वो बने हैं, तो आपको पार्टी के चेयरमैन का ही नहीं पता? तो देखे वो अभी नए बने हैं ना, तो इसलिए वो तो इतने जनरल ज़्यादा- मुशर्रफ तो अभी पार्टी में है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ना, वो तो तो छोड़ हम उनसे मोहब्बत करते हैं। वो चाहे जितनी देर वो अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, वो ये पार्टी कोई प्यार करे ना करे, इंशाल्लाह मैं उनसे प्यार आप कहाँ करता से आए? रहूं। मैं लाहौर से आया हूँ। क्या करते हैं? मैं जूतियों का काम करता हूँ। क्यों पसंद करते हैं जनरल मुशर्रफ को? जनरल मुशर्रफ को पसंद इसलिए करता हूँ, देखे उन्होंने लाखों करोड़ों दुनिया का रोजगार लगाया। वो जर्रात, वो बड़े ज़हीन बंदे हैं। ये देखे पाकिस्तान में जी जी नहीं मैंने खुद किया था, लेकिन उनके दौर में मैंने एक दफ़ा किया था, बड़ा अच्छा कारोबार था। जी जी। तो फिर उसके बाद ये जो थी आप मुशर्रफ साहब की पार्टी में शामिल कैसे हुए? अच्छा, ये जो है ना मोहम्मद नवाज साहब, मैं एक जलसे में गया था, तो वहाँ पे मैं काफ़ी पीछे रह गया था। तो ये नवाज साहब आए, तो उन्होंने मुझे इस पार्टी में पूछा आप कहाँ से? मैं कहा ये मैं जनरल मुशर्रफ साहब की पार्टी को पसंद करता हूँ। तो इस वजह से मैं ना, इस पार्टी का नजरिया क्या है? इस पार्टी का नज़रिया, तो ये जनरल मुशर्रफ साहब खुद एक नज़रिया है। देखे उन्हें इस पाकिस्तान में उन्होंने लाखों करोड़ों फैक्ट्रियाँ मोटरसाइकिल बनाने की लगाई, कितने लोगों का रिज़्क लगा, मीडिया को आज़ाद किया, कितने लोगों का रिज़्क किया, कितने लोगों का रिज़्क लगा। और ये देखे ये इमरान खान के बस के काम नहीं है इस मुल्क को चलाना, इसलिए कि इमरान खान ने कितने लोगों का रोजगार खोया। आपके जनरल मुशर्रफ 9 साल इस मुल्क के हाकिम रहे हैं, जी। उन्होंने क्या तब्दीली लाई? आज इमरान खान रो रहा है कि अच्छा मेरी बात सुने। देखिए इमरान खान ने अपने जलसे में पिछले दिनों तकरीर में ये कहा था, जरदारी और नवाज शरीफ की हुकूमत में पाकिस्तान के ऊपर कितना ज्यादा कर्जा चढ़ गया। तो उस इनसे पहले जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, तो फिर इमरान खान ने वो इमरान खान ने फिर जनरल मुशर्रफ साहब ने कर्जा उतारा। ये पॉइंट मैंने मुल्क का डिफेंस मजबूत किया है। आज की मैं मेरी सुने जो जरा सुन तो जो एक लगा हुआ ना 6 वाला केस, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मुशर्रफ का एक बयान देख लें। अगर उसने मुल्क की सिक्योरिटी को चैलेंज किया तो हम जिम्मेदार हैं। आर्टिकल 6 लगता है जो मुल्क की सिक्योरिटी या मुल्क के साथ गद्दारी करे वो नहीं। सबसे पहले आप देख लें जिन्होंने राजीव गांधी को लिस्टें दी हैं, जिन्होंने मुल्क की फौज के खिलाफ ISI के खिलाफ बयान दिए। आज के दिन आप आए तो आज के हम इसलिए आए हैं। लोग पहले किधर थे? कभी नहीं आए। हमारे डॉक्टर अमजद, बात सुनो, ये जो हमारी पुरानी क़यादत थी ना, ये नई जो आई है ना, डॉक्टर अमजद किधर गए? वो तो चले गए, वो जिधर का था उधर ही चला गया। उसको डॉक्टर अमजद को 3 दिन के बाद डॉक्टर अमजद गद्दार था, पार्टी के साथ नहीं था। पैसे लेकर और मुशर्रफ साहब मैंने उड़ाया, अगर किसी को शक है तो पूछ ले सारों से, अभी वो क्योंकि निकल गया। उसने पार्टी से निकला है।